Okay class, now we are going to study about the group number 5A. Group 5 is known as the nitrogen family. Class, group 4 is known as the carbon family, while the group 5 is known as the nitrogen family. Why? Because group 5 starts from nitrogen element. Okay? In this group, the first element is the nitrogen, then phosphorus, arsenic, antimony or strontium. It is called as antimony in English, and strontium is the Latin name. Okay, strontium and bismuth. These all are the elements of group 5A. You can see in the periodic table. Please look at your periodic table class. Group 5A elements, right? These are the group 5A elements. 5A elements: nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, bismuth. Right class? Bismuth. Right? Nitrogen, phosphorus, arsenic, strontium, bismuth. Right class? So these all are known as the group 5A elements, as they are the representative or main elements. So the group 5A elements, group 5A, right? So class, remember the name of the elements present in the group 5A. First element is the nitrogen, so that's why it is known as the nitrogen family. The maximum the valence electron in the valence shell, the electron present will be 5 because the group number is 5. Okay? How many valence electron? There may be maximum 5 valence electron in the outermost shell or the valence shell. Okay? Now we will study about these elements. ठीक है? 5 valence shell में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Valence shell, ठीक है? और इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी properties elements में. 5 electrons in the why? Because the group is 5. Group number is 5. Okay? 5. Right? Okay, now nitrogen. You know that nitrogen and phosphorus are non-metals. Nitrogen is the gas. Phosphorus is it is found in the solid form, and this is solid form, but it is the powder form, right? It is the non-metal. Okay? These both are the non-metals. क्या है ये? ये जो इनकी properties है ये. These both are non-metals. ठीक है? It is the gas. It forms the gas, and phosphorus is the non-metals, non-metal powder type substance. Okay. Arsenic and strontium are metallite. These both arsenic, and strontium. These both are metallites. ठीक है? Metallites क्या है ये? Metallites हैं. आपने metallites के बारे में पढ़ा है. The metallites have the properties of some properties of metals, some properties of non-metals. ठीक है? They are the metallites, as they have the properties of metals and non-metals. And bismuth is a metal. Bismuth क्या है? It is a metal. Right class? It is a metal. ये metal है. Okay? So these are the few common characteristics of the elements. Nitrogen is the non-metal, phosphorus is the non-metal, arsenic and strontium, these both are the metallites, and bismuth is the metal. Now let's see the compounds of nitrogen. Okay? There are many oxides of nitrogen. When nitrogen reacts with oxygen, it forms the many oxides known as the नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है? आई विल टेल यू द नेम्स क्लास के नेम बताती हूँ मैं आपको एलिमेंट्स के कौन से हैं ये. ठीक है? दीज आर नोन एज द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन. ठीक है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है बहुत सारे फॉर्म होते हैं नाइट्रोजन से. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक इज द नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस, ये सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं. नाइट्रस oxide, right? Like as it forms the nitric oxide, okay? It forms the
नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन trioxide. Okay, then it also forms the nitrogen pentoxide, nitrogen tetroxide and nitrogen pentoxide. Okay, it forms the nitrogen tetroxide N2O4, nitrogen tetroxide, and it forms the N2O5, nitrogen pentoxide. ठीक है, नाइट्रोजन जो है कोई एक से ज्यादा जो है कंपाउंड फॉर्म करता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी से रिएक्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, तो उसके लिहाज से कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, कंपाउंड्स क्या है क्लास? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, बुक में सिर्फ फॉर्मूले दिए हुए हैं, अब इनके नेम लिख सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना, ये O3 है ना, 3 है, O के साथ 3 है, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा N2O4, 4 shows the tetra. ठीक है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5, O5 shows the penta, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, so these are the compounds of the nitrogens. ठीक है, ये नाइट्रोजन बहुत फेमस कंपाउंड्स है जो बनते हैं और ये सारे ऑक्साइड के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अच्छा सब नाइट्रोजन ऑल एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के अलावा सबके एलोट्रोपिक फॉर्म मिलती है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन के अलावा यानी कौन से फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इन सब की एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, वो मिलती हैं। राइट क्लास, सो इट इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन फैमिली। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज द ग्रुप 6 है। ठीक है, ग्रुप 6 है, group 6 है, it is known as the oxygen family. Oxygen family class, ठीक है ना? Why? Because the first member of this family is the oxygen. So in the book you can see class, ठीक है, oxygen family में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं। प्योरिटी टेबल देखें प्लीज। ठीक है, here you can find oxygen, sulfur, selenium. ये कुछ न्यू नेम्स भी आ रहे हैं एलिमेंट्स के जो आप शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। सेलेनियम, टेलोरियम, ठीक है, TE, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम। राइट क्लास, देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम and polonium, these all elements belong to 6th group. अच्छा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, पता होगा आपको वैलेंस शेल में, ये तब तो याद हो गया ये सारा पॉइंट कि वैलेंस शेल में there will be 6 electrons. ठीक है, in the valence shell, in the outermost shell. ठीक है, अच्छा of these oxygen and sulfur are non-metals. ठीक है, ये जो है ये नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन जो है गैस है, सल्फर जो है ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सल्फर जो है वाटर की प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है, हार्ड फॉर्म में भी होता है, लेकिन ये नॉन मेटल है। ठीक है, सो दिस बोथ आर द नॉन मेटल। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है और ये नॉन मेटल फॉर्म में है, नॉन मेटल। ठीक है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, सफाई के लिए भी यूज करते हैं इसे। सेलेनियम एंड टेलोरियम, दिस बोथ आर मेटालाइट्स। क्या है ये? मेटालाइट्स, यानी वही के जो है कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली होंगी इसमें। और जो है पोलोनियम, इट इज अ मेटल। ये क्या है क्लास? इट इज अ मेटल। ठीक है, मेटल है। ये जो इनकी स्टेट्स है वो हमें याद रखनी है। ठीक है, सो दिस आर द स्टेट्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। लाइक ऑक्सीजन की जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज ओजोन। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आर फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आर O2 एंड ओजोन। ठीक है, O3। आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा क्लास। ठीक है ना, तो ओजोन के लेयर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं O3। ठीक है, ऑक्सीजन जो है एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और जो है सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म कौन से है? ओजोन है, ये ओजोन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन एंड ओजोन बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाइवेलेंट नेगेटिव आयंस। ठीक है, O-2 एंड S-2। अच्छा, ये
अब तक हमने पॉजिटिव एलिमेंट आयंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हम आ रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये माइनस साइन शो करते हैं, O-2 S-2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, दे विल रिसीव दिस चार्जेस और वैलेंसी बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हमने पढ़ा था, बताया था मैंने आपको कि जो एलिमेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जो लूज कर देते हैं यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, लूज कर देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे O-2 S-2 इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यानी ऑक्सीजन की जो ऑटोबोट शेल है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये किसी दूसरे रिएक्शन में किसी दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या होगा इसके पास, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस सूरत में, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए किसी और से ले लिए, तो उसके ऑटोमोट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको पता है एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, सो इट विल गेन द माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह सल्फर के साथ भी होता है, ठीक है। सल्फर का भी आप चेक कर सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करके आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक क्लास। इट इज ऑल अबाउट द ग्रुप 6A। आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेलोरियम मेटलाइट्स, पोलोनियम मेटल, ठीक है ना। और ये इनकी सबकी एटॉपिक फॉर्म मिलती है। एटॉपिक फॉर्म मैंने बताया था आपको, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन अपीयरेंस वाइज, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अपेरेंटली डिफरेंट होते हैं, देखने में बहुत डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग से होते हैं, ठीक है। तो इन सबके एटॉपिक फॉर्म मिलती हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोपिक फॉर्म की एग्जांपल है O2 O3, ठीक है। सल्फर के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म भी पढ़ेंगे आप